اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ پروقار استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک خیر مقدم، دونوں رہنماؤں کا پرجوش مصافحہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور شاہ عبداللہ دوم کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ استقبالیہ تقریب کے آغاز میں پاکستان اور اردن کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی معزز مہمان کو سلامی، گارڈ آف آنر پیش۔ شاہ عبداللہ دوم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور شاہ عبداللہ دوم نے وفود کا تعارف کرایا۔ شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ چشم ماروشن دل ماشاد خوش آمدید۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ شاہی طیارے کے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائے کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کے لیے غیر معمولی پروٹوکول۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے گرم جوشی سے پرتپاک استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ٹیکس نظام میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ٹیکس چوری روکنے اور وصولیوں کے نظام میں خامیاں دور کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ٹیرف اصلاحات، مثبت رجحانات اور FBR کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا ثبوت ہیں۔ تازہ ترین معاشی اعداد و شمار حکومتی معاشی اصلاحات کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز۔ عالمی جریدے بلومبرگ کا پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا اعلان۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ، رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈیشن سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت ملی۔ بلومبرگ، عالمی مالیاتی پلیٹ فارم پر پاکستانی معیشت کے مثبت اعشاریے، اقتصادی استحکام کا منہ بولتا ثبوت۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت کی پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی بھی تقریب میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی سمیت علاقائی پیش رفت اور غزہ میں امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کا پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ محمد اسحاق ڈار اور عمان کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ مشترکہ وزارتی کمیشن کا 8واں اجلاس جلد بلانے پر اتفاق۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، میں بھی گیا، وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، سارے گئے۔ ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی ہے کہ دہشت گردی نہیں کرنی، ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کو ریسکیو کرنے کے بارے میں بریفنگ۔ حملہ ناکام بنانے والے پاک فوج کے افسران اور جوانوں سے ملاقات، جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر داخلہ کی کیڈٹ کالج وانا کے طلباء اور ٹیچرز سے بھی ملاقات۔ دہشت گرد انسان نہیں، درندے ہیں۔ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان تیزی سے ابھرتی معیشتوں میں شامل، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ گرین کلائمیٹ فنڈ سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ بین الاقوامی اداروں سے مالیاتی امداد کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔
ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। बानी पीटीआई की तोहम परस्ती ने उनके दौरे हुकूमत में गवर्नेंस को तबाह कर दिया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के हुसूल के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी पीटीआई ने उस वक्त के डीजी ISI को ओहदे से हटाया। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के होश रुबा इंकशाफात। बुशरा बीबी ने यकीन दिलाया था कि मेरे साथ शादी करोगे तो वजीर आजम बनोगे। बानी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में बुशरा बीबी का गहरा असर रसूख था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी की राय हरफे आखिर समझी जाती थी, जिससे पीटीआई के संजीदा रहनुमा बानी पीटीआई से दूर होते चले गए। द इकोनॉमिस्ट। झूठे इल्जामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। बानी पीटीआई ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया। उनकी सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। बानी पीटीआई के हुकूमती, सियासी और माशी फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। आईनी तरमीम के बाद जजेस की तकर्री किसी की पसंद और नापसंद से नहीं होगी। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई है। हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के फॉलोअर्स आज इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। करने वाले मौसूफ थे बानी पीटीआई, पीछे से कहने वाली वो खातून थी, उस जैली पीरनी वाला किरदार अदा कर रही थी जो लोगों को धोखा देने वाली थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई के किरदार की दुरुस्त अक्कासी की। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक सब पीरनी के हाथों में होता था। बानी पीटीआई ने इक्तदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। भारत और इसराइल से फंडिंग ली। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई अवाम से किए वादे पूरे करने में मुकम्मल नाकाम रही। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सुई गैस फराहमी की तकरीब से खिताब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की निजी कॉलेज और स्कूल में तलबार असातिज़ा के साथ नशिस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबार असातिज़ा का पाक फौज को खिराज तहसीन। मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिए और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। तलबार असातिज़ा। आलमी सतह पर हिंदू इंतहा पसंदी की तशहीर। भारत का नाम निहाद सेक्युलर चेहरा बेनकाब। RSS आलमी सतह पर इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग के लिए सरगर्म। RSS ने अमरीकी लॉ फर्म के जरिए अमरीकी कांग्रेस पर असर डालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। फाशिस्ट मोदी और RSS रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल से अक़लियतों के हुकूक पामाल करने में मसरूफ। RSS की अमरीका में सरगर्मियां आलमी सतह पर फाशिस्ट तशख्खुस बदलने की कोशिश है। अमरीकी जरीदा प्रिज्म। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके नौगाम थाने में धमाका। 9 पुलिस एहलकार हलाक, 30 जख्मी। धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस की एक टीम थाने में मौजूद धमाके खेज मवाद की जांच कर रही थी। धमाके से थाने की इमारत और अहाते में खड़ी कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुआ। गैर मुल्की मीडिया। अफगानिस्तान में 35 लाख बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार। 14 लाख शदीद खतरे से दो चार। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत अलमिया बन गई। अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। यूनिसेफ की चश्मकुशार रिपोर्ट। अफगान तालिबान रजीम को खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने पर वसाइल सर्फ करने की बजाय मासूम जिंदगियों को बचाने पर गौर करना चाहिए। अमेरिका का सऊदी अरब को जदीद-तरीन F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का इम्कान। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा मंगल को अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में होगा। अरबों डॉलर के इक्तसादी और दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। ब्लूमबर्ग का दावा। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज तीसरा और आखिरी मैच कल रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज ने ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी। श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर वक्त इंशाल्लाह देते रहेंगे। मजा आ रहा है बहुत और श्रीलंका की टीम को सपोर्ट कर रहे सारे लोग। फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंका क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी शायकीन की भरपूर सपोर्ट हासिल। रावलपिंडी में श्रीलंका के परचम उठाए शायकीन की जानिब से मेहमान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। श्रीलंका के हक में नारे लगाए और शुक्रिया अदा किया। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड साज आगाज। श्रीलंका को 211 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 20 ओवर्स में 331 रन का रिकॉर्ड स्कोर। महरीन अली की डबल सेंचुरी। 78 गेंदों पर 230 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स। 45 चौके लगाए। जवाब में श्रीलंका 3 विकेटों के नुकसान पर 120 रन ही बना सका। तीन मुल्की T20 सीरीज की तैयारी। इस्लामाबाद में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज मंगल से रावलपिंडी में होगा। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। और एशियन फुटबॉल कप क्वालिफिकेशन का तीसरा मरहला। शाम की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान फुटबॉल मैच मंगल को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात हुई है। हम मुलाकात के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के साथ साथ इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने के मौके तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ असद यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। असद, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। आज ही वो इस्लामाबाद पहुंचे थे और पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में हुई और बाद में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात हुई और दोनों रहनुमाओं ने इस अपनी मुलाकात में जो पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफा ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान जो इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वसअत देने के अज़्म का भी इयादा किया। जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का गज़ा के तनाज़े में जो किरदार रहा है और इसके बाद जो गज़ा में इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी के हवाले से जो की जाने वाली कोशिशें हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने भी शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया और इस यकीन का इज़हार किया कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान जो पायदार दोस्ती के सबूत हैं ये मज़ीद मजबूत होंगे। उनके दौरे से इस वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान जो मुलाकात थी इसमें इलाकाई सलामती और अमन के इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर दोनों रहनुमाओं ने जंग के बाद गज़ा के हवाले से पाकिस्तान और उर्दन के असूली मौक़िफ़ बशमूल गज़ा से फ़लस्तीनियों के किसी भी नकल मुकानी के हवाले से किसी भी समझौते से गुरेज को तस्लीम किया। दोनों रहनुमाओं ने शर्म अल शेख में दस्तखत हुए गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक जो अमरीका के साथ मिलकर गज़ा में जंगबंदी पर काम कर रहे हैं उनके दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस अफगानिस्तान और भारत में होने वाली हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के जो कलीदी किरदार है उसका उन्होंने एतराफ़ किया। अब जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम हैं उन्होंने ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया जो मेहमान नवाजी उनको यहाँ पर उनकी की जा रही है। इसके साथ साथ इस मौके पर पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुफाहमती यादाश्त के तबादला भी हुआ और इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला इस तकरीब में मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मीडिया है, सकाफत है और तालीम के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को एजाज़ में इशाया भी दिया। जी बहुत शुक्रिया असद यार खान, तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई जिसकी तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा किया। वज़ीर आज़म और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। इस्तकबालिया तकरीब के आगाज में पाकिस्तान और उर्दन के कौमी तराने बजाए गए।
मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपने वफ्द का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अपने दौरे की यादगार के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का सबसे आला सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चश्मे मां रोशन, दिले माशाद। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान शाही तैयारे के पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए गैर मामूली प्रोटोकॉल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने शाह अब्दुल्ला दोम का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तो सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वफाकी वज़रा अताउल्ला तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर भी इस मौके पर मौजूद थे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आला हुक्काम भी शाह अब्दुल्ला दोम को खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात की बुनियाद बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार हैं। शाह अब्दुल्ला दोम का ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई तस्वीराती जहत देगा। शाह अब्दुल्ला दोम का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने उसे हिफाजती हिसार में ले लिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में बहुत मुआवन साबित होगा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने में मदद मिलेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने और तंबाकू, टाइल समेत दूसरे बड़े शोबों में वसूलियों के निज़ाम की खामियां खत्म करने और इंतजामी और इदारा जारी इक़दाम की हिदायत की है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि टैरिफ इस्लाहात, मुस्बत रुझानात FBR को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हुकूमती अज़्म का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन माशी अदादोशुमार हुकूमत की माशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने FBR समेत पूरी माशी टीम की पजीराई करते हुए जोर दिया कि इस्लाहात पर मुअस्सर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि टैरिफ इस्लाहात की बदौलत दरामदी सतह पर टैक्स वसूलियों में 25% इजाफा हुआ है। टैरिफ में कमी और टैक्स निज़ाम में बेहतरी समेत माशी इस्लाहात का मकसद सरमायाकारी के लिए माहौल को मजीद साजगार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। वफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज हल्फ उठाने वाले जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने भी तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद हुसैन गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाते के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई पेशरफ्त और गज़ा के लिए अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। मुसलसल आला सतह के रवाबित की अहमियत पर जोर देते हुए मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने जल्द पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का भी इजहार किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने हुकूमत के निजकारी एजेंडे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी के इजलास की सदारत की। कमेटी को PIA समेत बड़े पब्लिक सेक्टर इदारों की निजकारी से मुतालिक जारी इक़दामात और अमल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन को निजकारी के अमल को तेज़ करने और मुतालिका वज़ारतों को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI की सियासी हिकमत अमली और अहम रियासती फैसलों में बुशरा बीबी का गहरा असर रसूख था। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए बुशरा बीबी की नाम निहाद रूहानी सलाहियतों पर गैर मामूली इन्हिसार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के होशरुबा इंकशाफात के मुताबिक बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी ने बानी की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। फॉरेन मीडिया या फॉरेन डिग्नेटरीज इन चीज़ों के बारे में सवालात जरूर खड़े करते रहे हैं। जब हमने इस चीज़ को पिकअप किया तो उस वक्त हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था कि हम इंटरनेशनल ऑडियंस को या इवन के अपने इदारे को ये चीज़ किस तरह से समझा पाएंगे कि ये काला जादू या रूहानियत या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में बड़ा कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, हम किस तरह से ये समझा पाएंगे इसकी हमारी ज़िंदगियों में इन तमाम जो रिचुअल्स हैं उसकी अफादियत क्या होती है। शादी का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी ने बानी PTI को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इस शादी को लाजमी करार दिया। बानी PTI ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया कि रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी PTI का तैयारा उड़ान न भरता था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उनकी पार्टी, उनकी कैबिनेट के सीनियर मोस्ट, उनके क्लोजेस्ट एलाइज, उनके मिनिस्टर्स, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके टिकट होल्डर्स, हमने दर्जनों अफराद के साथ इस स्टोरी के सिलसिले में रब्ता किया, उनके साथ घंटों के हिसाब से सिटिंग्स की, उनके तफसीली इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किए। मेजॉरिटी मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने खान साहब की जो नाकाम पॉलिसियाँ थीं, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से थीं, वो सियासी इस्तिलाहात थे, वो बाद में जिस तरह उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के रूल के खिलाफ हैं, एक्चुअली वो लाए तो उसी पावरफुल क्वार्टर्स के ही लाए हुए थे और इस कुर्सी पे उनको बिठाया ही गया उन्हीं लोगों की वजह से था। वही उनके सहूलतकार थे, वही उनको लाने वाले थे, वही उनको चलाने वाले थे। मजीद बताया गया कि अहम तकर्रियों, फैसलों और हत्ता के जाती मुलाकातों में भी बुशरा बीबी की राय को हतमी समझा जाता था। साबिक DG ISI से इख्तलाफात की वजह भी बुशरा बीबी से मुतल्लिक मामलात को बताया गया। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI की सियासत मुनाफकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। बानी PTI के दौर में जितने फैसले हुए उनके पीछे रूहानियत का लिबादा ओढ़े बुशरा बीबी थीं। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI ने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने मुझे पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की। बानी PTI के इल्जामात के पीछे झूठ और बख्तान का एक पूरा निजाम मौजूद था। बानी PTI ने ऐसे झूठे बयानात से शहबाज शरीफ की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झूठे इल्जामात उसने पूरी दुनिया पे लगाए धरनों के दौरान 2017 में। ये जो शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब रुपए की ऑफर वाला इल्जाम लगाया कि 10 अरब रुपए ले लो और ये पनामा केस वापस ले लो, ये कई बार दोहराया, ये टीवी प्रोग्राम में दोहराया, ये परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान दोहराया, ये शौकत खानम पेशावर की तकरीब में दोहराया, ये कराची एयरपोर्ट पे कारकुनान से खिताब के दौरान दोहराया। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं,
اور اس بنیاد پہ آپ نے دیکھا بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے، مگر پی ٹی آئی کی حکومت فارن پالیسی معیشت کے حوالے سے کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کر فیصلے نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری کسی کی پسند اور ناپسند سے نہیں ہوگی، اب تمام فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ آئینی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں اور پراپر اس کا قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے، تو کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور پارلیمان اس ملک کا ایک بالادست ادارہ ہے جس کو قانون سازی کا بھی حق حاصل ہے اور آئینی ترمیم کا بھی حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک میرٹ بیس سسٹم بنایا ہے اس ملک کے اندر، سیپریشن آف پاورز کو دیکھتے ہوئے، جوڈیشری کے رول کو دیکھتے ہوئے، پارلیمان کے رول کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ، وہ آبجیکٹیوٹی پہ اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی، کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وانا کیڈٹ کالج میں پاک فوج نے کامیاب آپریشن کر کے 500 سے زائد طلبہ کو بازیاب کروایا، ہماری افواج خراج تحسین کے لائق ہے۔ اس سے قبل ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حد تک عزت کے دعوے پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے گواہ عطا اللہ تارڑ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین نے عطا اللہ تارڑ کے بیان پر جرح کو مکمل کیا، جس کے بعد عدالت نے 29 نومبر کو شہباز شریف کے اگلے گواہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو طلب کر لیا ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان ریلویز کے وزیر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار پر قابض رہنے کے لیے سازشیں کی، ان کی جماعت نے ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ بھی لی۔ کراچی میں ان کے میڈیا سے گفتگو کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ غیر ملکی جریدے نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بے نقاب کر دیا، جبکہ جریدے میں وہی لکھا ہے جو ہم قوم کو بتا رہے تھے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کے کردار کی درست عکاسی کی ہے اور مایوسی میں گھرا ہوا مرید اپنی پیرنی کے اشاروں پر چلتا رہا۔ 1992 کے بعد دن رات کی ایک ہی محنت تھی کہ میں کسی طرح پاکستان کی جو اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں، جس سے مرضی ساز باز کر کے ہو جاؤں، بے شک ملک دشمن ہو، جو مرضی فنڈنگ دے رہا ہو، وہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہو، ہندوستان سے آ رہی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ میں نے شوکت خانم کو سامنے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے فنڈنگ کے حوالے سے خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے فالوورز آج اس آرٹیکل کو بار بار پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں کسی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں دوست ممالک سے تعلقات بھی خراب ہوئے۔ اس ملک کے نزدیک ترین ہمسایہ ممالک تھے، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا گیا۔ ان کو چھوڑ دیں، سعودی عرب ہم سے دور ہو گیا، چائنا ہم سے دور ہو گیا، آپ یورپ کی بات، آپ ایران کی بات کریں، سب کی باتیں، کیونکہ پیچھے کہنے والا کوئی اور ہوتا تھا، کرنے والے موصوف تھے بانی پی ٹی آئی، پیچھے سے کہنے والی وہ خاتون تھی، اس جیلی پیرنی والا کردار ادا کر رہی تھی جو لوگوں کو دھوکہ دینے والی تھی۔ ملک انشاءاللہ چلے گا، لیکن آئینی حدود کے اندر رہ کر، اور وہ لوگ چلائیں گے جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہندوستان کو 10 مئی کو شکست دی، اپنے سے کئی گنا بڑے شخص کو، اپنے ایمان کے بلبوتے کے اوپر، جادو نگری کے بلبوتے کے اوپر نہیں، جادو کے بلبوتے کے اوپر نہیں، بلکہ آج دنیا کے اندر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا جو استقبال ہوتا ہے وہ جادو ٹونے کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا، صلاحیتوں کی بنیاد، ایمان کی بنیاد کے اوپر۔ آج دنیا جو ہے، آج ہماری خارجہ پالیسی کو سلامی پیش کر رہی ہے، سلام پیش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے اور پاک فوج کے کامیاب آپریشن کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیڈٹ کالج کا دورہ کیا ہے۔ تفصیل نواب علی شاہ سے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وانا کیڈٹ کالج کا دورہ کیا اور آپریشن میں شریک سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں کامیاب آپریشن کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیڈٹس کے والدین اور وانا کے عمائدین سے بھی خصوصی ملاقات کی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے انہیں آگاہ کیا۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، میں بھی گیا، وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، سارے گئے۔ ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی ہے کہ دہشت گردی نہیں کرنی،
हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करे। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकॉनमी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, हर चीज़ बेहतर जा रही है। मुलाकात में वाना के अमायदीन और कैडेट्स के वालिदैन ने कामयाब ऑपरेशन करने पर पाक फौज का दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें क़याम अमन के लिए कबायली अवाम की जानिब से अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने जान का नजराना पेश करके हमारे बच्चों को महफूज करवाया। इसका हम जनरल साहब का और ताहिर साहब का, प्रिंसिपल साहब का हम दिल के से शुक्रिया अदा करते हैं। ये न इंसानियत जानता है, इस्लाम से खारिज है, लेकिन ये दरिंदे, ये चरवाहे हम आपके साथ हैं, रियासत के साथ है, कल साथ थे, आज साथ है, आने वाले कल भी साथ है। कॉलेज पे जो क़यामत टूटी थी बड़े अहसन तरीके से उसका खात्मा किया। दहशतगर्दी के खात्मे में कबायली अमायदीन का तावन और हसास इदारों की मालूमात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में गैर मुल्की अनासर मुलविस हैं, जिसका खात्मा होना तय है। PTV न्यूज के लिए वाना कैडेट कॉलेज से नवाब अली शाह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त हुई। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। तलबा के साथ होने वाली खुसूसी नशिस्त में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल और दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू की। इस दौरान तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए असातिज़ा का कहना था कि पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। We all thank the armed forces of Pakistan for protecting and safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. I also want to say thank you so much for protecting the people of Pakistan. Don't ask what the country has done for you. Ask yourself what have you done for the country. In today's interactive session, it allowed students to think out of the box and how they can help promote Pakistaniyat, active citizenship and their own personal and social commitment. खुसूसी नशिस्त के बाद तलबा का कहना था कि मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया है। आज की नशिस्त से एहसास हुआ कि मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। Message from the youth: we are from Pakistan Army and the Pakistan Army is from us. We are standing beside you. We'll always be here. We'll do whatever it takes to serve Pakistan in whatever means. Pakistan Zindabad, Pak Army Zindabad. It was such an honor having DGISPR here, and he had such great insights on the consequences of negative use of social media and how he took all of our questions and everything was incredible. हमें सुनी सुनाई बातों पे बेसिकली यकीन नहीं करना चाहिए। Just based on one social media post or few social media posts. अगर हम अपना ओपिनियन जनरेट करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। It was an amazing session since the DGISPR gave equal amount of time to each and every single student. It helps us in understanding कि जो हमारी military forces हैं उनकी commitment कितनी है पाकिस्तान के साथ। This is a modern era. We should use everything in a limit and we should obtain firstly evidences, then trust on any kind of news that our enemy is using against us. I must say that opinion is very necessary. Nobody can fool you if you have your own opinion. You have your own moral values and we are proud of our army. So I would like to say Pakistan Zindabad. DGISPR के साथ होने वाली खुसूसी नशिस्त ने तलबा को रवायती सोच से हटकर गौर व फिक्र करने का भी मौका दिया और नौजवानों को पाकिस्तानियत, फाल शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तस्वुर से रोशनास कराया। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हिंदुस्तान की तरफ से आलमी सतह पर हिंदू इंतहा पसंदी की तशहीर से भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो गया है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से आसिम नजीर। सफाक मोदी की सरपरस्ती में राष्ट्रीय सिविक सिंह RSS आलमी सतह पर इंतहा पसंद हिंदू तवा नजरिए के फरोग के लिए सरगर्म है। गासिब मोदी और RSS रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल से अकलियतों के हकूक पामाल करने में मसरूफ हैं। अमरीकी जरीदे प्रिज्म की तहकीकात के मुताबिक RSS ने अमरीकी लॉ फर्म के जरिए अमरीकी कांग्रेस पर असर डालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। RSS बैरून ममालिक बिलखुसूस अमरीका में लॉबिंग के लिए खतीर रकम खर्च कर चुकी है। प्रिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक RSS अमरीका में
میں فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے بغیر لابنگ کرا رہی ہے۔ امریکی صحافی میگنات بوس نے انکشاف کیا ہے کہ RSS نے خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر درج کیے بغیر لابنگ کی۔ معروف امریکی صحافی ڈاکٹر آڈری ٹرشکے کے مطابق RSS کی لابنگ امریکہ کے لیے بری خبر ہے اور امریکی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ پرزم کی رپورٹ کے مطابق مودی کی سرپرستی میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے مشہور ہے۔ ماہرین کے مطابق RSS کی امریکہ میں سرگرمیاں عالمی سطح پر فاشسٹ تشخص بدلنے کی کوشش ہیں۔ ہندو توا ایجنڈے کے تحت انتہا پسند مودی سرکار بھارت میں مذہبی آزادی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مضافاتی علاقے نوگام تھانے میں ایک پراسرار دھماکے میں 9 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 30 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس کی ایک ٹیم تھانے میں موجود دھماکہ خیز مواد کی جانچ کر رہی تھی۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے کشمیریوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضے کا مذموم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں حریت رہنما محمد یعقوب شیخ کا گھر ضبط کر لیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی جبر و استبداد کا نوٹس لے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ کے ایک نجی اسپتال سے ایک اور کشمیری ڈاکٹر رئیس احمد بٹ کو حراست میں لے لیا۔ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ نااہل افغان طالبان رجیم میں خوراک تک محدود رسائی سے بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تفصیل جانیں گے اکبر خان کی رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف کے مطابق طالبان رجیم میں بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں خوراک تک محدود رسائی نے افغان بچوں میں مختلف بیماریوں کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ افغانستان میں 2 سال سے کم عمر کے 90% بچے غذائی قلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2025 میں 35 لاکھ بچے غذائیت کی کمی کا شکار جبکہ 14 لاکھ شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ غذائی قلت کے شکار بچوں میں سے 85% سے زیادہ کی عمر 2 سال سے کم ہے۔ افغانستان کے صوبہ بامیان کے 54% سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر وسائل صرف کرنے کی بجائے معصوم زندگیوں کو بچانے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اکبر خان، PTV نیوز، پشاور۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمارا سامنے مقابلہ کرنے کی بجائے افغانستان کے ذریعے دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب خان۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وانا ہو یا اسلام آباد کے شہری، افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا سلسلہ کسی طرح تھمنے میں نہیں آ رہا۔ قطر اور ترکیہ سمیت دنیا کے مختلف فورمز پر افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ ہم نے 40 سال سے زیادہ اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر رکھا اور اس کا سلا یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمن ڈائریکٹ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی فوج نے کیا، تو اب وہ دوسری سرزمین استعمال کر کے چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ میں اس شخص کا کبھی احترام نہیں کر سکتا جو میرے پرچم اور ترانے کا احترام نہ کرے۔ جب ایک بندہ آپ کو تحفے میں دہشت گردی دے رہا ہے، خودکش جیکٹیں دے رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں دے رہا ہے، ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ حق بجانب ہے جواب دینے میں، اور جب بھی ہم چاہیں جس وقت بھی ہم جواب دے سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ جس ملک کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہو اس کے ساتھ تجارت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا امکان ہے۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران طے پانے کا امکان ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ میں اربوں ڈالر کے اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنج کا سامنا ہے جس سے نمٹنا ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ COP30 کانفرنس سے اپنے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ گرین کلائمیٹ فنڈ سے استفادے کے لیے رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے گرین سکوپ بانڈ جاری کیا گیا ہے۔ As we go forward, as much as we are looking for funding, financing from our international partners, equally we are looking for technical support and assistance in terms of capacity building so that we can come up with investable, bankable projects which can be structured, monitored and reported to international standards. So in addition to the funding and the financing part of it, the technical support for Pakistan would be greatly appreciated in terms of success transfers from
from other jurisdictions. वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हेल्थ केयर के निज़ाम की बेहतरी, बीमारियों की रोकथाम और हर शोबे में मेरिट का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कराची के निजी अस्पताल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में 9 लाख जबकि दुनिया भर में 25 लाख नर्सेज की मांग है। हम हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बैरून मुल्क भेज कर कसीर ज़र मुबादला ला सकते हैं। तकरीब से खिताब में दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 26% से ज़ायद आबादी ज़ियाबतीस से मुतासर है, इसलिए ज़रूरी है कि बालिग़ अफराद साल में कम अज़ कम एक बार अपनी मुकम्मल स्क्रीनिंग ज़रूर कराएँ। तकरीब में वज़ीर सेहत को इदारे की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर इमरान अहमद शाह ने साहिवाल में रोड्स की तामीर व बहाली के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और मुस्लिम लीग नून लाज़िम मलज़ूम है। उन्होंने कहा कि नूरशाह रोड की तामीर व बहाली का मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान नफरत और इंतशार की सियासत से पहुंचा है। फैसलाबाद में सुई गैस फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बानी PTI के दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। PTI हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में मुकम्मल नाकाम रही है। जो लोग नफरत को और दूसरों के खिलाफ साजिश को जो है वो नस्बो लैन बनाए और इस तरह की सियासत करे, तो इससे ना उन्हें कुछ हासिल होता है ना मुल्कों को हासिल होता है। आज अगर पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है और मार्का हक की कामयाबी के बाद अब इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जब दुनिया में अब किसी मुल्क में जाते हैं तो वो जो मुल्क पहले जो है वो हमें देख के दूसरी तरफ ध्यान कर लेते थे, अब वो रेड कारपेट बिछा के हमारा इस्तकबाल करते। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरखरू हुआ है। सनाउल्लाह ने कहा कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, हल्के के मसाइल का हल तरजीह है। हल्के के तमाम देहातों में जल्द गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। The kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements exchange ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar Saab, to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again,
and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. With the kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements Exchange Ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar Sahab, to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is Cooperation Agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I will request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ اور تقریب اسلام آباد میں ہوئی. اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ہر وقت بار وقت درست، ہر وقت بار وقت